सेलेक्ट द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूट इन इफेक्टिव टीचिंग। सो जब भी कोई इफेक्टिव टीचिंग होगी तो उसका सब्जेक्ट नॉलेज होगा, सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो नहीं देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी एंड उसके बाद में टीचर कॉम्पिटेंस इन द मैनेजिंग एंड द मॉनिटरिंग द क्लासरूम। ठीक है, एबिलिटी भी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ टीचिंग एड इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। The purpose of the higher education is to promote the creative thinking. These abilities ensure the placement. So both are true. Now the formative, that is the quizzes and discussion. Summative is the grading and continuous evaluating the cognitive, cooperative and the norms में क्या आता है, टेस्ट होते हैं कुछ। ठीक, नेक्स्ट है A research intent to which is the following initial mandatory requirement for the pursuing research, formulating a research question. Research explore the effect of possible factor, जिसमें कि मिड डे मील्स वगैरह भी होते हैं तो वो एक्सपोज फैक्टर को बोलते हैं। ठीक है, नाउ द फॉर्मेट ऑफ द थीसिस राइटिंग ए रिसर्च डिजर्टेशन। तो डिजर्टेशन को ही हम क्या बोलते हैं, थीसिस राइटिंग बोलते हैं। इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम which of the following feature may be considered the critical? So data collection with the bottom up empirical evidence. bottom up जो होता है उसको critical बोला जाता है। ठीक है, now for the from the following list of the statement identify the state which negative implication for the research ethics. So negative implications में एक तो आएगा related studies are cited without proper references. देन उसके बाद में कंडक्ट पर्टिकुलर स्क्रीन इन द टर्म ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस एंड इसके बाद में जो आएगा दैट विल बी द बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म ऑफ द प्रिलिमिनरी स्टडी। नेक्स्ट इन द रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेस एंड प्रोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द कॉम्पीटिंग स्कूल, the hypothesis formulated is that child is rearing practice to influence the stress promptness at the data analysis stage, and null hypothesis is advanced to find out the tenability of the research hypothesis. So the research hypothesis will be accepted. तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ एक पैसेज है जिसमें से आंसर्स देखने थे। विच कंट्री enjoyed the competitive advantage in the automobile industry? That was Japan. While labor-based competitive advantage of India and the Singapore cannot be sustained in the IT service because of new competitors, how can an organization enjoy the competitive advances sustainable over time? By effective use of the various instrumentability. What is required to ensure the competitive advantage? That was superior knowledge. The passage also mentioned about the trend global financial flow. What does the author say? Or the passage knowledge driven competitive advantage. Imagine you are working in an educational institution. These people are of the equal status. Horizontal communication में equal status होता है. Identify the important element a teacher has to take the cognizance of which addressing student in the classroom. Voice modulation होता है. What are the barriers in the effective communication? Moralizing, being judgmental and comment on the consolidation. The choice of the communication partner is influenced by the factor of proximity, utility and the loneliness. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. Adoption of the well-established posture. Every communicator has to experience the anticipatory excitement. In a certain selected code, the OQCJ, CARGML code is American. सो अमेरिकन का कोड बताना है, सिलेक्शन का कोड हो गया, देन अमेरिकन का बताना है। सो इस वाले क्वेश्चन में जो पैटर्न बन रहा है दैट पैटर्न इज़ अबाउट, इस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 23 में +8 का पैटर्न बन रहा है, -2 का पैटर्न बन रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 3, 11, 23, 39 एंड 59। इसमें है +8, +12, +18, +20, +24 करेंगे तो 83 आंसर आ जाएगा। 2 रेलवे टिकट्स हैं ए और बी। 3 टिकट्स फ्रॉम द सिटी ए टू सी इज़ 177। 3 टिकट्स फ्रॉम द सिटी ए टू बी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम द सिटी ए टू सी कोस्ट 173। दिस फेयर फॉर द सिटी बी फ्रॉम सिटी ए विल बी, दैट वॉज द 33। तो यहाँ पर 2x + 3y करना है, देन 3x + 2y करना है, 6x + 9y = 531
एंड 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 346। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज सिस्टर ऑफ B, F इज डॉटर ऑफ G, C इज मदर ऑफ B, D इज फादर ऑफ C, E इज मदर ऑफ D, A इज रिलेटेड टू D, तो वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये कई बार करवाए हैं ये क्वेश्चन। अगला है A B C को खा जाओ, D को खा जाओ। A B C D पीछे से आ रहे E, फिर E हो गया, F G H I सीधे चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या आएगा, H I के बाद J आएगा, J पीछे से भी चलेगा, J से पीछे से चलेगा, तो J के LM C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशन टू आर रिलेटेड टू द वन इज डिनाइड अदर विच इज़ द फॉलोइंग इज सेलेक्ट। तो ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, तो ये इसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, ऑल के साथ सम नॉट। अगला है इफ़ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज ए फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी क्लेम टू बी ट्रू, सम थीव्स आर नॉट पुअर। ऑल अगर पुअर हैं तो सम आर नॉट पुअर। कंसिडर द फॉलोइंग to suppose that the earth is the only populated world in the infinite space is as absurd as to assert that in an entire field of millet only one grain will grow, that is illogical. Select the code which is not correct about the Venn diagram, it can be either valid or invalid, तो ये wrong है। Select the code which is not correct in the context of the deductive argument with the two premise. An argument with two true premise and a false conclusion may be valid, that is not true. An argument with two true premise and one a false conclusion may be valid. false conclusion है तो ये valid कैसे होगा। अगला है कि राम इमोशनल है और राम इज़ नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन। राम इज़ रिलीजियस पर्सन एंड जितने भी लोग रिलीजियस होते हैं वो इमोशनल होते हैं, तो राम इमोशनल है, राम एक नॉन रिलीजियस पर्सन है। ठीक है, तो ये पूछना क्या चाह रहा है, टू प्रोमाइसेस और द फोर are drawn from then taking single together, select the code that state the validity drawn. Now next one है, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, मुझे तो आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ करने की। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 35। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ 9 लाख है ना, 9 लाख है। तो if the total expenditure of the two company that is the 9 lakh in the year 2012 and the expenditure of A and B were in the ratio of 2:1, so 2/3 इंटू 9 करेंगे तो 6, 1/3 इंटू 9 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब इसके बाद में 35% टोटल है इनका मिला करके रेशो है ना। तो लेट द इनकम हमने x मान दी, तो x माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100 बराबर कितना है, 35% के बराबर है। 35% दे रखा है ना, 2012 का पूछा है, तो ये 35% है। तो अब हम करेंगे 35 अपॉन 100 इक्वल्स टू x माइनस 6/6। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8.1 लाख आ जाएगी, तो ये 8.1 लाख वैल्यू आ गई। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी बी। तो कंपनी बी ने कितना प्रॉफिट परसेंटेज लिया है, तो बी का टोटल सबको जोड़ेंगे तो 190 आएगा और डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 38%। तो ये तो ईजी था। इन विच ऑफ द ईयर परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज़ लेस देन कंपनी ए। अब बी जो है लेस देन है किससे, कंपनी ए से। कौन से ईयर में है, तो 2013 में देख लो, तो 2013 में आ जाओ, 45 है यहाँ पे 35 ही है। ठीक है, बी लेस है किससे, ए से, बाकी तो सब में ज़्यादा ही है। ठीक है, ये हो गया, ये तो इजी था। नाउ अगला क्वेश्चन है इसका, ये एक और पैराग्राफ आ गया अपने पास। इसमें है क्लासिकल, पॉप, रॉक, जाज, ब्लू, हिप हॉप और एम्बियंट, ये सब डांसेस हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैम्पल वर एज 21 से 30, 21 से 30% बताना है। तो 21 से 30 का हमें सबको जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 33 134 का कितना परसेंट है, 134 क्यों, क्योंकि टोटल तो 134 है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है 134 और इसमें वो है 33, इंटू 100 करेंगे तो 25% आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैम्पल इंडिकेट दैट हिप हॉप इज़ देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ द म्यूज़िक। हिप हॉप फेवरेट है, तो हिप हॉप के कितने लोग हैं, देखो 9 + 4 + 3 16 हो गए,
16, 134 का कितना परसेंट है? 12% है, ये हो गया 12। What percent of respondent aged 31 प्लस इंडिकेट फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक? 31 प्लस की जो एज है ये रही, तो टोटल कितनी है 31 प्लस के? 68 लोग हैं, अपॉन 134 कर लो, परसेंटेज 50% आ जाएगा। तो ये तो काफ़ी ईजी था। ठीक है, अगला चले। द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी। इफ़ द बाइनरी इक्वलेंट ये जो है 48 है, 11,000 4 टाइम 0, तो 1100 51 का कितना होगा? तो निकाल के देखा हमने, तो 110011 आ जाएगा। तो इसमें 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे करना था। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द फाइल दैट इज़ बर्निंग एंड अनसॉलिडेटेड जो ईमेल होता है इसको स्पैम कहते हैं। रोम जो होता है दैट इज़ मेमोरी सर्कुलेट दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ASCII is a character encoding that employed the person computer in order to represent the various characters that is American standards code for the information interchange. Identify the air pollution in the urban area which is irritated by its surface ozone. Which is the following is largest source of the water pollution? तो ये वाटर सीवेज में होता है सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30 तक। इंडियन गवर्नमेंट टारगेट प्रोडक्टिव पावर बायोमास 10 मेगावाट। कंजर्विंग और सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल इज़ होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनरल्स। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 50% तक का है कि हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग अमंग द इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन प्रमोट द नाक? तो प्रमोटिंग द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंफ्रा नहीं आएगा, इसमें वैल्यूज़ डालनी है, नेशनल डेवलपमेंट करना है, ग्लोबल कॉम्पिटेंस बढ़ाना है। बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन, मेंटरिंग करना। एनजेक का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। विच इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज करेक्ट? पॉलिटिकल सिस्टम द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ ट्रू ओनली। विच इज़ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स तो नहीं आएगा इसमें। रेस्पेक्ट द फ्लैग आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, और पेरेंट्स टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एजुकेशन आएगा। विच इज़ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रेस्पेक्ट टू नीति आयोग? सो नीति आयोग में क्या आता है?